قلم کے معزز ناظرین و سامعین، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس لائیو پروگرام میں۔ آج ہمارے ساتھ انتہائی خاص مہمان محترم ڈاکٹر غلام قادر لون ہے، غلام قادر لون صاحب۔ تو یہ جماعت اسلامی جموں کشمیر کے ایکس جنرل سیکرٹری ہیں، اور جماعت اسلامی کی جو پینل ہے اس کے ایک ممبر ہیں، اور بہت عرصے سے جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو آج بھی یہ جماعت کا جو پینل ہے اس کے ایک ممبر ہیں، اہم ممبر ہیں۔ تو آج ہم ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ سوالات ہمارے پاس ہیں ان کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ غلام قادر لون صاحب، آپ کا نوک قلم میں استقبال ہے۔ شکریہ۔ لون صاحب، پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کچھ ایک دو دنوں سے چونکہ ابھی جماعت کا جو معاملہ یہ ابھی چل رہا تھا، اس کے آپ کی پینل اس پہ کام کر رہی تھی، اور مرکز میں بھی یہ سارا کچھ سلسلہ چل رہا تھا، وکلا اپنا کام کر رہے تھے۔ لیکن اس بیچ کل اچانک سے خبر آ گئی کہ جماعت اسلامی پر 5 سال کی پابندی کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، بلکہ اس کو برقرار رکھا گیا ہے، اور لیکن اس کا کوئی آرڈر ابھی ہمارے پاس نہیں آیا ہے، میڈیا میں یہ خبریں چلی ہیں۔ تو مجموعی طور پہ عوام میں کنفیوژن جیسا کریٹ ہوگا، یہ بتا رہے ہیں کہ اگر پابندی لگی ہے تو آرڈر کہاں ہے، اگر اب پابندی لگی ہے تو یہ کیسی خبریں ہم سن رہے ہیں، اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ چونکہ آپ پینل کے ممبر بھی ہیں، آپ کے پاس کیا جانکاری ہے ایگزیکٹلی؟ اصل میں جو پابندی ہے اس کے لگنے کے بعد ایک ٹریبونل مقرر ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو اسی نے ہم کو بلایا تھا، بھائی اگر آپ کو کچھ کہنا ہے اس بارے، تو ہم گئے کورٹ میں۔ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ہم اپنی بے گناہی ثابت کریں۔ تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے بھی براہ راست کوئی حکم نہیں پڑھا دیکھا ہے، البتہ اخبارات کے ذریعے سے، اخبار کے ذریعے سے، گریٹر کشمیر کے ذریعے سے، اور میڈیا میں آیا جماعت پر پابندی لگی ہے، تو ہم نے بھی کوئی آرڈر دیکھا نہیں ہے، لیکن صحیح ہی ہوگا، ایسے وہ غلط تھوڑا بنیں گے۔ اچھا، یعنی لیکن یہ معاملہ ہے لون صاحب کی میڈیا میں پہلے خبر آئی اور آپ کی پینل کو معلوم نہیں ہے، یہ کس قسم کا مطلب، یہ کہاں پہ کنفیوژن ہے، یا یہ گورنمنٹ کنفیوژن کریٹ کرنا چاہ رہی ہے اس معاملے میں؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے، پتہ نہیں ہے کس کارنر سے یہ خبر اخبار تک پہنچی، یہ میرے خیال میں گریٹر کشمیر بہتر جانتا ہے کہ اسے کہاں سے اطلاع ملی اور اخبار میں چھپایا۔ اچھا چونکہ آپ پینل کا حصہ ہیں اور بہت مائنوٹلی اور کلوزلی ان چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں، کیا آپ کی نظر میں واقعتاً جماعت کی پابندی کو برقرار رکھا گیا ہے اس ٹریبونل کی اس کے جو ٹریبونل میں کیس چل رہا تھا اور مرکز نے اس کو پابندی کو برقرار رکھا ہے، یا اب یہ محض افواہ ہے؟ نہیں، بات ہم تک اسی اخبار کے ذریعے پہنچی ہے، براہ راست ہمیں مطلع نہیں کیا گیا ہے۔ ہم نے اپنے وکیل صاحب سے بھی رابطہ کیا تھا، وہ رابطہ ہو نہیں سکا، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے، ہم اتنا ہی کہیں گے کہ اخباری اطلاع کے مطابق اپنے حکومت کے فیصلے کو درست قرار دیا ہے، اور آئندہ وقت کے لیے بھی پابندی ہی رہے گی۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اچھا لون صاحب، یہ بتائیں، چونکہ انتخابات کے معاملے میں بھی کچھ خبریں آئی ہیں، عوام میں ایک شدید قسم کا کنفیوژن ہے۔ یہ عوام جو ہے ایک تو عام لوگ ہیں، اور ایک دوسرا طبقہ ہے جو ہمدرد ہے جماعت کا، اور دوسرے کچھ ارکان ہیں یا امیدوار ارکان ہیں۔ جماعت میں بہت سارے لوگ وابستہ ہیں اس کے ساتھ، لیکن یہ کنفیوژن ہے کہ کیا الیکشن میں حصہ لیں، ووٹ کس کو ڈالیں، امیدوار کون ہوں گے۔ مجموعی طور پہ یہ کنفیوژن ہے، ہر ایک، لیکن میں ایسا کہوں گا کہ ہر ایک کشمیری کے ذہن میں کنفیوژن ہے اس معاملے میں کہ جماعت کیا کرے گی۔ اس کنفیوژن کو کیسے آپ دور کر سکتے ہیں، یا کیا کہیں گے اس کے متعلق؟ ایک بات میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہم نے پچھلے پارلیمانی انتخاب ہونے کے وقت ہم نے واضح کیا تھا کہ اگر ہم پہ سے پابندی ہٹائی گئی تو آنے والے الیکشن میں ہم باضابطہ تنظیم کی حیثیت سے حصہ لیں گے، اور ہم نے اپنا ووٹ ڈالا بھی تھا اس وقت جب پچھلے دنوں پارلیمانی انتخابات ہوئے، اور ایسا نہیں ہوا۔ لہذا جب ہم پر سے پابندی برقرار رہی
तो साफ जाहिर है कि एक पार्टी की हैसियत से हम हिस्सा नहीं ले सकते। तो इसमें अब कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन यहाँ पैदा होता है कि हमने ये फैसला किया कि जब पाबंदी हम पर आयद है तो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन हमने वोट डाला है, हमने वोट डालना है। हमने 69 में भी डाला, 71 में भी डाला, 72 में भी डाला, 77 में भी डाला, और 82 में भी डाला, और 87 में भी डाला। और उसके बाद हम अपने वोट का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सके कि हमने 87 की जो रिगिंग हुई उसके तनाजुर में हमने फैसला किया था कि हम अरकान की हद तक अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने कोई मुहिम नहीं चलाई कभी जमात की हैसियत से कि भाई वोट मत डालो, अलबत्ता हमने हिस्सा नहीं लिया। तो इसलिए लोगों को लगा होगा कि भाई हम इंतखाबात से बहुत दूर रहे हैं बहुत पहले से, अब ये ऐसे अचानक क्यों एक मामला सामने आ गया, फिर जमात के मैदान में आ गई। तो हमें इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा लेने पर कोई एतराज कभी नहीं रहा है। हमारा सिर्फ ये मुतालबा था कि यहाँ इलेक्शन ठीक हो रहे हैं। मेरे ख्याल में जहां तक मुझे वाकफियत है 1977 के इंतखाबात ही यहाँ ठीक तरह से हुए हैं। जब मोरारजी देसाई की हुकूमत थी तो उस वक्त जहां लोगों ने वोट का इस्तेमाल किया तो रिजल्ट उनके हक में आया, नेशनल कॉन्फ्रेंस से जीता शेख साहब की रहनुमाई में। उसके बाद से पहले या उसके बाद जितने भी इंतखाबात हुए, हालांकि 1951 के असेंबली इंतखाबात भी जो शेख साहब ने ही कराए थे, उनके बारे में भी किताबों में लिखा है कि वो भी धांधली के बगैर नहीं थे। वहां भी कोई न कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई थी, किसी ने फॉर्म भरने की जरूरत नहीं की थी। लिहाजा ये इंतखाब 1970 का ही हमारी नजरों में जहां तक मुझे वाकफियत है वही धांधलियों के बगैर था। बाकी सब इंतखाबात में हर तरह की मुदाखलत हो गई। तो हमने अपनी जगह एहतजाज किया था कि भाई हम आइंदा तभी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे जब ये पूरी गारंटी हो आइंदा धांधली नहीं होगी। लेकिन हमारी बदकिस्मती, हमारी इस बात को सुना नहीं गया। मतलब हिंदुस्तान ने इसका कोई नोटिस नहीं लिया, ना कश्मीर की उस वक्त की हुकूमत ने। उन्होंने गनीमत समझा कि भाई एक छोटी सी जमात है, इसका मुतालबा है, इसको रद्द करना चाहिए, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन पिछले 1 साल 2 साल से जब हमने पैनल बनाया, हमने मुख्तलिफ रवाबित बढ़ाने की कोशिश की, जिन जिन से हम मिले हमने उन्होंने हमें बताया कि इंतखाबात में अगर आप हिस्सा लेंगे आपको क्या एतराज है। हमने यही बात दोहराई कि इंतखाबात यहाँ नहीं होते हैं पुरअमन, या ऐसा नहीं होता है कि एक को वोट डालेंगे रिजल्ट दूसरे के हक में। उन्होंने कहा कि अगर आप आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेंगे हम यकीन दिलाते हैं कि इंतखाबात में दाखिल नहीं होगी। तो मैं समझता हूं कि जो पार्लियामानी इंतखाब पहले यहाँ हुआ, जिसमें बारामूला से रशीद इंजीनियर साहब और बाकी जगहों पर, उसमें कहीं किसी कॉर्नर से भी इतना नहीं आई कि धांधलियां हुई है। सब ने इंतखाबात को एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब है कि जो यकीन दहानी उन्होंने की थी वो दुरुस्त साबित हुई। हम मुस्तकबल में ये यकीन रखेंगे कि आइंदा भी इंतखाबात ऐसे ही ठीक तरह से होंगे। इस वजह से हम इंतखाब अमल से दूर थे। और दूसरी बात कि 90 में हम पर बैन आयद की गई, एक और बैन हम पर लगाई गई, 75 में भी लगाई गई, 90 में भी लगाई गई। 90 से 96 तक हम पाबंद ही थे। हमने उस वक्त के हालात के मद्देनजर दफ्तर खोलने की जरूरत नहीं की। 1998 में भट्ट साहब जेल में थे और शेख मोहम्मद हसन साहब भी जेल में थे। उन्होंने हमें जेल से इतला दी कि भाई बैन का टाइम खत्म हो गया है, आप सरगर्मियां जारी रख सकते हैं और कम अज कम आप जमात का इंतखाब करा सकते हैं। हमने जमात का इंतखाब कराया तो भट्ट साहब अमीर जमात कर हुए 1997 में, और 98 में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह बात वाजिया कर दी कि जमात आईनी पुरअमन तरीके से अपना काम जारी रखेगी। जमात का दस्तूर ये इजाजत नहीं देता है कि हम ऐसी सरगर्मी में हिस्सा लें जो ज़ेर जमीन हूं। और ताकि कि अब तक बैन लगने तक 2 मार्च 2019 तक हम कतई तौर किसी भी ऐसी कार्रवाई में मुलवस नहीं जो आईन पुरअमन तरीक़ेकार के बरक्स हो। और हम समझते हैं कि इस तरह से हम पर जो बैन ठोसी गई, यह इंसाफ नहीं जुल्म है।
इसलिए हम समझते हैं कि हमें हर महाज पे कोशिश करनी है कि पाबंदी हम पर से हट जानी चाहिए। कानून का रास्ता भी अख्तियार किया है, हमारी रिट हाई कोर्ट में भी चल रही है, दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है, ट्रिब्यूनल के पास भी हम गए, शायद और भी आगे जा सकते हैं अगर जरूरत है। हम कानूनी तौर भी चाहते हैं कि पाबंदी हम पर ना रहे। हम कोई ऐसा जुर्म कर ही नहीं चुके हैं कि हम पाबंद बनाए जाएं, हम पे इल्जामात लगाए जाएं, भाई ये तकरीब कार करते हैं, ये बाहर से पैसे इनको आते, इन तमाम बातों के को कई छापे डाले गए हमारे घरों पर। मेरे ख्याल में सैकड़ों घर हैं जिन पे यहाँ किताबों के बगैर कुछ नहीं निकला, बस जो कुछ था वो हमारे पास किताबें थी, किसी के पास कोई इलीगल हथियार नहीं निकला, पैसा नहीं निकला। इसलिए इसके बाद कोई जवाब नहीं बनता है हम पर पाबंदी जारी रखने का। लेकिन फिर भी अगर कोर्ट ने ये मुनासिब समझा, बहरहाल उसका एहतराम करेंगे, एहतराम करते रहेंगे। अगर उसने मुनासिब यही समझा कि बैन को जारी रखा जाए, हम कानूनी तौर लड़ सकते हैं, अलबत्ता फैसले को हम गलत नहीं कह सकते, ये उनकी मर्जी है जैसे उन्होंने समझा। लेकिन हम आइंदा भी कोशिश करेंगे कि कानूनी तौर पर हम पे पाबंदी ना रहे। दूसरी बात यह, हम आवाम को भी एजुकेट करना चाहते हैं। भाई हमारे पास ना कोई हथियार निकला, ना हमारा कोई रायता किसी दूसरे मुल्क के साथ है, फिर हमारे दरसगाहों पर पाबंदी क्यों? क्या वजह है कि हमारे तलबा को, हमारे असातिज़ा को जो वहां काम करते हैं, उन बेचारों का रोजगार भी मुतासर हो रहा है। हमारे 1 लाख बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारा निसाब बिल्कुल वही निसाब है जो पूरे हिंदुस्तान में पढ़ाया जाता है, इसके बावजूद भी पाबंदी क्यों? हमारे स्कूलों से भी कोई ऐसा रिकॉर्ड साबित नहीं हुआ जिसे ये पता चलता कि भाई इन इदारों के जरिए कोई गलत राह दिखाई जाए। इसलिए चाहते हैं हम कि लोग जो हैं वो भी उन तक भी ये बात पहुंचे। हमारे दरसगाहें, उनको अब वीरानी की तरफ जाना शायद मेरे ख्याल में अगर यह पाबंदियां जारी रही वो भी वैरान हो जाएंगे। खुद हमारे दफातर जो है, जो हुकूमत ने, जिन पे मोहर हुकूमत ने लगाई है, ये उनका हक। जब हम ममनू करार दिए गए तब हमारे दफ्तरों पर लॉक लगाया गया, लेकिन आज उन दफ्तरों में हम देखते हैं तोड़ फोड़ हो चुका है। वहां ये सुनने में आया है कि वहां भंग भी, चरस भी पिया जाता है, वहां गुंडागर्दी अंदर होती है, ना कोई खिड़की रही। ये कोई ठीक बात नहीं है। जमहूरी मुल्क के लिए ये सोचना था कि उन्होंने जब वो अपने तहवील में लिया, और जब पाबंदी उठेगी इंशाल्लाह तो उन्हें तो मिनवान वापस करना चाहिए था। एक अमानत है उनके पास हमारी तरफ से, शायद उसको खयानत करना कोई अच्छी बात नहीं है। हम ये भी उजागर कराना चाहते हैं, हम खुद नहीं कर सकते, पाबंदी है। तो ये फैसला किया है कि कुछ जगहों पर से हम उन आजाद उम्मीदवारों के साथ रायता करेंगे जो अगर जीतते हैं तो उनके जरिए से हम असेंबली में या इस फोरम से हम हिंदुस्तान पे वाज़ेह करेंगे कि हमारे पर से पाबंदी हट जानी चाहिए। इसमें यह भी एक मकसद है कि एक जमहूरी तरीक़ार करेंगे हम। अगर वो जीत भी ना जाते हैं खुदा न खास्ता, तो भी एक आवाज बनेगी कि हम ये समझाना चाहते हैं भाई एक ऐसी तंजीम जिसके साथ लाखों लोग वाबस्ता है, एक ऐसी तंजीम है जिसके सैकड़ों दरसगाहें चल रही है, 1 लाख बच्चे मुतासिर हो रहे हैं, तकरीबन 15 से 20 हजार असातिज़ा, उनका रोजगार खत्म हो रहा है। आखिर जब हमारा कोई जुर्म ही नहीं तो पाबंदी क्यों हम पर आयद की जाए? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहने का ये मतलब नहीं है कि भाई हम कोई उठेगा हम पर इल्जाम लगाएगा चोर हो, लेकिन चोरी साबित ना हो जाए फिर भी चोर है। मैं समझता हूँ ये कोई अच्छी बात नहीं है एक जमहूरी मुल्क के लिए। हम ये मानते हैं हिंदुस्तान में जमहूरियत है, कश्मीर में नहीं थी, लेकिन आगाज होने जा रहा है। शायद यहाँ भी जमहूरी फजा अगर हो गई कायम तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। जैसे पार्लियामानी इंतखाबात के बाद हमने खुशी का इजहार किया, अगर आइंदा भी ऐसे इलेक्शन हो जाए, और मैं समझता हूं कि अगर हो गए इलेक्शन इस तरीके से शायद बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। हम नहीं कहेंगे सब मसाइल हल हो जाएंगे, हर तरह का मसला के मसाइल हल हो जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन मसाइल का एक हिस्सा जरूर हल होगा। हमारे ऐसे नुमाइंदे सामने आएंगे जिनको वाकई अवाम ने अपने वोट से मुंतखब किया हो। तो अगर इस फोरम से हमारे कोई उम्मीदवार आगे जाता है या ना भी जाता है खुदा न खास्ता, तो भी हम चाहते हैं कि इन्हीं लोगों के जरिए हम हुकाम पर यह वाज़ेह करें कि एक
मजलूम की बहरहाल मदद की जानी चाहिए। हम अपने आप को बिल्कुल मजलूम समझते हैं। हमने 1996 से लेके 2019 तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है जो हिंदुस्तान के आईन और जमात इस्लामी के अपने आईन के खिलाफ हो। वो पुरअमन है और जेर जमीन कोई कार्रवाई नहीं। मैं समझता हूं कि इसलिए भी हम चाहते हैं कि कोई किसी को हम सपोर्ट करेंगे, वो तो हमने डालना है, किसी न किसी को डालना ही है। अगर हम कुछ ऐसे लोग भी आगे भेजने में कामयाब हो गए जो फिर हमारी बात के बशर्ते कि वो हमारे मेयार पर उतरते हों, चाहे जितने हों, तो उनके जरिए हम चाहते हैं कि ये मामला भी बढ़े। ठीक लोन साहब, चूंकि आपने कुछ तारीखी पहलू भी हमारे नाजरीन के सामने रखे, कुछ तारीखी गोशों को भी छेड़ा है, मुझे ये बताएं, अगर आप कुछ आजाद उम्मीदवारों को आप सपोर्ट देना चाहते हैं, आपके कहने के मुताबिक आप उनकी मदद करना चाहते हैं, अगर वो आपके मयार के मुताबिक, जमात के मयार के मुताबिक खरे उतरेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि जमात जिसके मुताबिक कुछ खुल के सामने नहीं आ रही है, कुछ ऐसा लग रहा है कुछ इत्तेफाक राय शायद नहीं बन रहा है, यो कंसेंसस नहीं बन रहा है, या ऐसा कुछ है मामला, क्यों हमारे पास ये वाज़ेह नहीं हो रहा है? बेटा मैं आपसे अर्ज करूंगा कि कोई भी तंजीम, जो भी तंजीम हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो या इसके बगैर कोई तंजीम, उसका अपना ढांचा होता है और उस ढांचे से बाहर भी लोग बातें करते हैं, अंदर भी बातें करते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमारा जो तंजीमी ढांचा जमात का, उसके अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं है। कतई तौर मैं यकीन से कहता हूं कि कोई इख्तिलाफ नहीं है। मतलब कुछ लोगों को शक था कि हमारे साबिक अमीर जमात जो जेल में है, वो अगर बाहर आ गए तो वो इस पैनल के काम से इत्तेफाक नहीं करेंगे। ये उनको अपनी ही सोच उनके अंदर से उभरी थी। और हमारे साबिक कायम मकाम अमीर जमात या कायमी जमात मोहम्मद अदनान फहीम साहब, वो जेल में थे। कुछ लोग समझते थे कि वो बाहर आएंगे, वो इस पैनल के साथ या शूरा के फैसले का इख्तिलाफ करेंगे। लेकिन दोनों बुजुर्ग जब जेलों, एक तो पैरोल पर के लिए आया, उनके बेटे की शादी थी, दूसरे को छोड़ ही दिया गया है, यह शुक्र है अल्लाह का, तो उन्होंने हमारी इस पॉलिसी के साथ इत्तेफाक किया। हमारे जमात के अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं है। हाँ, अगर कोई इख्तिलाफ है, मैं मानता हूं, जो इख्तिलाफ करते उसको रिजाइन करना चाहिए। रुकनी जमात है, करने का हक है। अगर उसको जमात ये पॉलिसी पसंद नहीं है, छोड़ जाए जमात को। अगर उसके साथ ज्यादा मेजॉरिटी लोगों की है, सामने आ जाए, कहे भाई हमारे साथ, अगर अरकान हमारा 1000 तादाद है, हमारे साथ 900 है, 600 है। ये कोई ऐसा आदमी हो सकता है जो अखबारात के या कुछ दो राय जमा कर, हो सकता है कहने वाले की अपनी राय वही हो जो वो कहता है, लेकिन जमात का पूरा निजाम जो है मुनज़्ज़म है और पूरी शूरा का हमारे इस फैसले के साथ इत्तेफाक है। मैं यकीन से कहता हूं। लोन साहब, मुझे बताएं, आपके जो पहले जो इस परसों का जो ये अखबारों में, खबरों में, मीडिया में खबर आई कि पाबंदी को बरकरार रखा गया है, अगर पहले भी आपने कहा था कि अमीरी जमात, साबिक अमीरी जमात डॉक्टर साहब भी जब पेरोल पे रिहा हुए तो उन्होंने भी बताया कि अगर मरकज पाबंदी हटाती है तो जमात इलेक्शन में हिस्सा लेगी। क्योंकि अब अगर मरकज ने पाबंदी नहीं हटाई, चूंकि अभी हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर सामने नहीं आया, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जी पाबंदी लगी है। जब ऑर्डर आएगा तो हम कह सकते हैं। अब ये खबरें हैं या कुछ क्या है मामला, लेकिन ऐसी फिर क्या मजबूरी पड़ गई? अगर जमात ने पहले कहा कि अगर पाबंदी उठी तो हम इलेक्शन में लड़ेंगे, अब क्या मजबूरी पड़ी कि वो कह रहे हैं कि हम आजाद उम्मीदवारों को वोट डालेंगे? चूंकि आपने इसका जवाब दिया कि हम चाहते हैं कि पाबंदी उठे वगैरह, लेकिन आप अगर पाबंदी भी नहीं उठी तो आप किन बातों पे मरकज को कायल कर सकते हैं जब पहले ही वो इसका इनकार कर रहे हैं? उसके बावजूद भी अगर आप ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो क्या मतलब निकलेगा? क्या मजबूरी है ऐसी? ये भी एक सोच है। ये एक सोच है कि भाई हम कोशिश करते हैं, हमारी कोशिशें बराबर नहीं हुई हैं, मरकज ने या कोर्ट ने इसके साथ इत्तेफाक नहीं किया जो हम कहते हैं, तो फिर और कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। तो ये कुछ लोगों का ख्याल है, उनकी जगह ख्याल में ये दुरुस्त होगा, लेकिन हमारा ख्याल ये है कि हमें कोशिश और भी जारी रखनी चाहिए। हाथ पे हाथ धरे बैठने की जरूरत नहीं है। हम कोशिश करेंगे जो भी हमसे मुमकिन हो सके कि हम मजीद, बहरहाल वहां बैठे हुए लोग जो हैं वो कोई फरिश्ते नहीं है,
वो आसमानी लोग नहीं है कि उन्हें सब कुछ पता है। हो सकता है उन्हें कुछ अपने मफादात हों, इसलिए वो इसको जारी रखें। हम कोशिश करेंगे कि उनकी राय बदल जाए। इसमें हमें अगर कोई मददगार साबित हो सकता है, उसमें ये जमहूरी अमल भी हम समझते हैं, ये भी एक रास्ता है। चलो आहिस्ता ही सही, थोड़ा ही सही, शायद ये हमारे लिए हेल्पफुल बने, शायद हो सकता है ना बने, लेकिन हमारी अपनी राय ही है। लोन साहब ये भी खबरें आ रही थी कि कुछ कॉर्नर से ये भी खबरें आ रही थी कि जो ये पैनल बना था जमात का, चूंकि जमात थी जो शूरा थी इसकी, इसने बल्कि कश्मीरी अवाम को मजमूई तौर, चूंकि जमात के साथ कश्मीरी अवाम इनके तो है जज्बात वाबस्ता है, इनने कहा कि इस पैनल ने हमें ये जी भरपूर एतमाद तरीके से ये बताया कि भरोसे से बताया कि हमारी पाबंदी उठ रही है, जो ये हमारा पैनल गया है वहां पे बात हो रही है, पाबंदी उठ रही है, इसलिए अब तैयारी करें इलेक्शन की। लेकिन अब जब आ गया कि पाबंदी उठ रही है, उठने वाली नहीं है, तो कि इस तरारी कैफियत पैदा होगी है कि अगर पैनल के ये कहने के बावजूद कि जब पाबंदी उठ रही है, क्या कहीं मेरा सवाल यह है, क्या कहीं मरकज फिर ये गलत फहमी का शिकार तो नहीं करवा रही है जमात को और पैनल को और मशावरत को, अरकान मशावरत जो है? असल बात यह है कि पैनल के हम हैं 5 है, हम पैनल के मेंबर। पैनल ने क्या देखा, किसके साथ वो बात कर रहे थे, उसकी तर्जमानी पैनल को ही हक है ना, पैनल ही कह सकता है ना। जब हम जिनसे हम मिले उनकी बातों से हमें लगा पाबंदी की, और अगर इस पर अमल नहीं हो सका तो बाहर से बैठने वाला कैसे ये कह सकता है कि हमें धोखा दिया गया? इसमें क्या जीतना है, हम धोखा देंगे? इसे कौन सा महल हमें तामीर करना है? असल बात यह है कि हमें यकीन था इस बात पे कि हमारे घरों से कोई अशाई नहीं निकली जो हमारे हिंदुस्तान के आईन और हमारे खुद अपने आईन के खिलाफ हो। ये हमारा एक यकीन था, और इसके साथ उन्होंने इत्तेफाक भी किया था जिनसे हमारी बात हुई। और इसी तरह से हमारे घरों से कोई खत तक भी नहीं निकला जिसका किसी बैरूनी मुल्क से रायता हो। इन चीजों को नजर रखकर जब हमने अपना केस पेश कर दिया, तो इस केस को पेश करने के बाद हम अपनी जगह मुतमईन थे कि भाई जब हम मुजरिम ही नहीं है तो फिर शायद हम पर से पाबंदी उठेगी। और यही बात हमने आकर कही है, हमने कोई अपना अलग एक जुमला भी अपना नहीं इसमें डाला। हमने कहा हमने बात की है, हमारा केस सुना गया है, सुनने के बाद हम मुतमईन हैं कि बैन उठ जाएगी। इसका यह मतलब नहीं है किसी होम मिनिस्टर ने, डिप्टी होम मिनिस्टर ने या किसी ने हमें बताया पाप की पाबंदी उठेगी। ऐसी बात हमने ना कही है, ना हमसे कही गई है। हमारे साथ बात करते थे, उनसे जब हम मिले थे, हम समझे कि उनका इस बात के साथ इत्तेफाक रहा कि भाई हमारे घरों से कोई ऐसी शाई नहीं निकली जिससे ये अंदाजा किया जाता कि इन लोगों को कोई बैरून रायता है, ये तकरीबी कार्रवाई करते हैं। इसलिए हम यकीन सकते थे कि पाबंदी का कोई अवजाज नहीं है। अगर इससे कोई ये मतलब लेता है कि हमें धोखा दिया गया है, तो मैंने समझता हूं कि इलेक्शन में चंद आजाद उम्मीदवारों को सपोर्ट करने से कौन सा फायदा हमें मिल सकता है? ये कौन सा, अगर हमने बीजेपी को फायदा वोट डालना है इसके लिए अपील की हो तो सोचा जा सकता है। अगर हम कांग्रेस को वोट डालेंगे, कहते हैं कि मरकज में भाई इनकी हुकूमत है या मजबूत अपोजिशन है, शायद उन्होंने इनको खरीदा है। हम अपने ही रियासत के उन लड़कों से रायता करते हैं जो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने का सोचते हैं या फार्म भरने जाते हैं। हम उनसे कहेंगे कि आपका कैरेक्टर, आपका उठना बैठना, इसमें हमें नजर आता है कि इसमें कोई ऐसा जुज नहीं है जो हमारे लिए नापसंदीदा हो। अब आप अगर बन गए तो आप हमारे मामलात को भी दिलचस्पी से आगे आवाज को उठाए। वो बनते हैं या नहीं बनते हैं, मैंने समझा इसमें कहां से ये निकला कि अगर जो यहाँ की रीजनल पार्टीज हैं, जैसे पीडीपी है, एनसी है, अवामी इत्तेहाद पार्टी है, पीसी है, कुछ जमातें हैं जो अभी लगता है कि इलेक्शन में बड़ा रेलिवेंस है, उनकी रेलिवेंट है अभी कश्मीर में, अगर उनके मेंबरान आपसे राब्ता करते हैं, वो कहते हैं कि जमात हमें सपोर्ट करे और हम आपकी बात को पार्लियामेंट में ले जाएंगे, हम आपकी पाबंदी को उठवाएंगे, क्या आप इन रीजनल पार्टीज को सपोर्ट देंगे?
देखिए भाई, ये कल की बात है, आज की नहीं है। कोई या नहीं है तो हमने जवाब किया हो, किसी ने आगाज नहीं किया है, हमने इनकार किया। हम ये सपोज करते हैं अगर वो आएंगे, शायद ऐसे लोगों को हम जजते ही नहीं जिनके बारे में आप ये उम्मीद कर बैठे हैं कि वो जमात के दरवाजे को खटखटाएंगे। अब तो हम बैन पार्टी है, हमारे पास कौन आएगा? किसको ये टिप्पणी है कि हमारे साथ हाथ मिलाए? जब हम ममनू है तो इन हालात में ममनू पार्टी के साथ ऐसे लोग कहाँ आ सकते हैं? ये कोई आजाद मेंबर अगर मानता है हमसे बात करें, ये उसका एहसान है, उस पर हमारी मिन्नत नहीं है, क्योंकि ऐसी पार्टियां ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। फिर तो अब तक भी ये काम कर चुके होते, वो आजाद थे, मजबूर नहीं थे, उनकी अपनी आवाज चल रही थी, अखबारात निकलते थे, वो उसके उनके पार्टियों के कई मीटिंगें हो गई है, उनके इंतजाम, उनके जो बॉडीज हैं, जनरल बॉडीज, वहां भी कभी ये मसला जेर बहस लाया उन्होंने। कई उन्होंने महसूस किया कि भाई एक तंजीम इसी मुल्क में काम कर रही है, उसके हजारों बच्चे मुतासिर हैं, उनके हजारों असातिज़ा बेघर होने वाले हैं, उनकी जायदादें तलफ हो रही। कभी एक दो लफ्ज भी उन्होंने लिखे हैं इस बारे में, कभी वो ये यकीन दे चुके हैं। उन्होंने कोई करारदाद पेश की है हमारे हक में तो हम कहेंगे भाई हमने यू टर्न कर दिया, क्योंकि वो तो बड़े मुखलिस उधर से थे, हम ही यहाँ से ऐसे लोग साबित हुए कि हमारे ही अंदर खुलूस नहीं है। ये वो तो खुले बन तो हम है ना, वो उन्हें हमसे तहजीत करनी थी। अब अगर कोई हल्का सा भी, थोड़ा सा भी आपकी नजरिए और आपकी आइडियोलॉजी से कोई इत्तेफाक रखता हो, कोई यहाँ पे जो कुछ रीजनल पार्टीज हैं, अगर वो आप इस इंटरव्यू को देखने के बाद आप तक अप्रोच करते हैं कि भाई हम आपकी बात ले जाएंगे, आपसे पाबंदी उठवाएंगे, तो आपका क्या जवाब रहेगा और क्या आप सपोर्ट करना चाहेंगे? बेटा, इस इंटरव्यू से बगैर भी अगर वो आते तो इस्तकबाल करते, ये सोचते बाद में हमें क्या करना है, लेकिन कम से कम दरवाजे तो बंद नहीं करते। हमारे अमीर जमात हैं, मतलब पैनल के अमीर हैं, हम समझो वैसे अमीर जमात है, क्या कोई उनके पास गया है? क्या कोई उसके घर में गया है? एक बूढ़ा आदमी है, भाई हम देखेंगे उसकी सेहत कैसी है? ये वो लोग नहीं है जिनसे आप कायम कर चुके हैं, ऐसे लोग नहीं है। हमने नहीं देखा उनमें इतना खुलूस। अगर वो खुलूस का मुजाहरा करेंगे हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। हम तो कोई बड़ी पार्टी नहीं है, हमारा कोई वोट बैंक बड़ा नहीं है, क्योंकि हम एक छोटी पार्टी है, हमारे साथ ज्यादा लोग नहीं है, इसलिए हम लोगों के साथ बड़े लोग कहाँ आ सकते हैं? क्या कोई देखा है तारीख में आपने कभी कोई ऐसा वारक उठा है? आप बेटा एक बात सुनिए। 1979 में 4 अप्रैल 1979 में हमारे घरों के साथ जो कुछ हुआ, आप छोटे हैं मेरे ख्याल में, आपको पता है, हमारे 2 आदमियों को शहीद कर दिया गया, हमारी 40 करोड़ की जायदाद कारकुनों की जला दी गई। क्या आप समझते हैं कि किसी ने हिंदुस्तान में या कश्मीर में किसी ने उसकी मजम्मत की? किसी ने हमारे साथ दो लफ्ज भी बोल दिए हों कि जिनमें हमदर्दी की हो? हाँ, ये हम हैं इंशाअल्लाह जो कभी भी उनके साथ उलझते नहीं हैं। हाँ, अपना नजरिया हम पेश करते हैं। हमें एक गिला रहेगा कि जब भी हम पर मुसीबत आई, ये लोग हमारे सामने 2 लफ्ज बोलने के भी नहीं आए। बैन हम पर लगी, नबे में लगी, तब भी आया जा सकता था। में उठी, हमने दफ्तर खोला, तब भी आ सकते थे। ऐसा नहीं हुआ। अगर हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। लोन साहब मुझे बताएं, चूंकि 87 के इलेक्शन में यहाँ पे मफ बनी, जो यहाँ की दीनी तंजीमें, एक इत्तेहाद बना जमात इस्लामी, उसमें बड़ा अहम रोल था उसका, लेकिन उस वक्त यहाँ की रीजनल पार्टीज और बाकी मरकज की मदद से वो जमहूरी अमल से आपको बड़ा जबरदस्त तरीके से रोका गया। और वो तो तारीख है, वो आपने भी बताया, 87 की रिगिंग जो हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे फिर हालात खराब हो गए। तो आज जो मरकज, जो कि आप कह रहे हैं हम जमहूरी अमल में हिस्सा लेना चाहते हैं, आज मरकजी सरकार कहीं आपको वो 87 की तरह रोकने की कोशिश तो नहीं हो रही है? और कहीं इसके नताइज खुदा न खास्ता कुछ उधर इधर तो नहीं निकल सकते? देखिए, नताइज हम जमहूरियत पे बीजेपी से, कांग्रेस से, कम्युनिस्ट पार्टी से ज्यादा जमहूरियत पर हम यकीन रखते हैं। मैं यकीन से कहता हूं, हमारी पार्टी के अंदर भी जमहूरियत है, ये भी एक काबिल रशक बात है।
آپ نے ہمارے انتخابی عمل کو دیکھا ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ کسی پارٹی میں اتنی شفافیت نہیں ہے جو ہماری پارٹی کے اندر ہے. تو ہندوستان کیا کرے گا، یہ اس کو استعمال کرے گا، ہم اس زاویے سے نہیں دیکھتے ہیں. وہ ہمیں استعمال کرے گا. ہندوستان کو ہمارے ہاں سے کیا ملے گا، وہ ہمیں استعمال کرے گا. ہم کوئی ایسی پارٹی ہیں جو حکومت بنانے والی ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی تعداد ہے جن کو کل خریدا جا سکتا ہے، ان کو وزارت اعلیٰ کی کرسی دی جا سکتی ہے، پھر وہ واپس بھی لی جا سکتی ہے؟ ہم ایسے نہیں ہیں. کیا ہم ایسے ہیں کہ ہمیں منسٹر بنایا جائے گا، مرکز میں وزارت خارجہ ہمیں دیا جائے گا عہدہ، تو پھر چھوڑ بھی دیا جائے گا؟ ایسے لوگ ہیں. ہم ایک چھوٹی سی تعداد ہیں ان لوگوں کی جو ایک نظریے پہ قائم ہے کہ بھئی انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے. میرے کہنے کا مطلب ہے آپ نے 87 تک الیکشن لڑا، بہت سارے آپ کے ایم ایل ایز تھے، 5 الیکشن لڑے ہیں جماعت میں، بڑا زبردست کنٹریبیوشن ہے. اسمبلی میں آپ کے جو ممبران اسمبلی انہوں نے بولا ہے. 87 میں آپ کو اس جمہوری عمل سے ریگنگ کر کے روکا گیا، یہ ایک تاریخ ہے. میرے کہنے کا مطلب ہے کیا اگر آج آپ نے حامی بھر لی ہم جمہوری عمل کا حصہ بنیں گے اور آپ پہ پھر سے پابندی کو برقرار رکھا جا رہا ہے، کہیں یہ پھر سے آپ کو جمہوری عمل سے روکنے کی کوشش تو نہیں ہو رہی ہے مرکز کی طرف سے؟ ایسا بھی اگر ہو، لیکن ہمارا طرز عمل یہ ہے جو ہمیں گالی دے گا ہم نہیں دیں گے، جو ہمیں جمہوریت سے روکے گا ہم جمہوریت کے ہی راہ چلنا چاہیں گے. وہ جتنا چاہے روک سکے، ہم کسی مرحلے پر بھی مشتعل نہیں ہوں گے. یہ ہمارا عہد ہے، اقرار ہے. تب سے جب دستور بنا اور اس سارے پیریڈ میں ہم نے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے امن کا دامن نہیں چھوڑا ہے. 87 سے ایک بعد سے جو واقعات ہوئے وہ اس وجہ سے ہوئے کہ یہاں کے جو ووٹرز تھے، وہ نوجوان طبقہ تھا، ان کو مایوس کر دیا گیا. اور پھر اس میں ہمارا کوئی راست ہاتھ نہیں تھا، وہ کوئی باہر سے آیا تھا ہاتھ، اور اس نے انہیں ایسا کرنے کے تیار کر دیا. اگر پھر بھی کریں گے لیکن ہم مشتعل نہیں، ہم پھر جمہوری راستہ پر چلیں گے. جتنا وقت لگے گا ہم بڑے صبر سے چلیں گے. ہم یہ کبھی بھی نہیں سمجھیں کہ بھائی ان کا یہ طریقہ ہے ہمیں جمہوریت سے وہ روک کر پھر 87 کی صورتحال دوسرے طریقے سے کر رہے ہیں. کرنے دیجیے، ہم کچھ نہیں کریں گے. ہم کسی صورت میں بھی جمہوری عمل سے کوئی ایسا کے بجائے کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کریں گے جس میں تشدد ہو، انتشار ہو، باہمی نفرت. کیونکہ ہم نے 87 سے 97 تک جب تک ہم بین تھے ہم نے بہت دیکھا ہے خرابی. امن نہیں، اطمینان نہیں، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ پھر دوبارہ کبھی ریاست میں ایسے حالات نہ ہوں. اگر کوئی پیدا کرتا ہے وہ پھر کی اپنی مرضی ہے، ہم اس کو اس زاویے سے نہیں دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں یہ فی الحال ایک بہانہ بناتے ہیں کہ بھائی کورٹ نے آپ ہمارے فیصلے کی تصدیق کر دی، ہم کورٹ کو مانتے ہیں، انکار تو نہیں کریں گے. اس کے بعد جو قانونی عمل ہوگا وہ بھی دہرائیں گے، پھر دوبارہ ان کے پاس جائیں گے، بھائی ریکنسیڈر کرو مطالبے کو. ہم اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک کے رہنے بسنے والے لوگ ہیں، آپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. پھر ایک مرحلہ آئے گا جب وہ زیادتی حد سے زیادہ کرتے جائیں گے، ہم برداشت کریں گے. تو برداشت کی ایک یہ حد ہوتی ہے کہ ایک اور طاقت ہے، وہ ہے آسمان سے خدا تعالیٰ کی ذات. ان لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے ساتھ کیا ہوا، لیکن اوپر ایک ذات ہے، ایک قوت ہے، چاہے آپ ایشور بولیں، بھگوان بولیں، اس کی لاٹھی جو ہے بڑی سخت ہوتی ہے. وہاں کے 47 جماعت اسلامی کے علماء مفسر شہید کر دیے گئے. اور پھر کیا وہ لوگ کہاں ہیں جو یہ عمل کر رہے ہیں؟ اگر آج بھی یہی دہرائیں گے لوگ، ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے لیکن مشتعل نہیں ہوں گے. اچھا لون صاحب، مجھے بتائیں، ایک سوال آج کل عوام کے ذہنوں میں، بلکہ جو جماعت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ جماعت نے 30 سال تک یہ کہا کہ بائیکاٹ کرو، اور جی یہ ووٹ ڈالنا حرام ہے، اور جی یہ جو ووٹ ڈالے گا وہ اسلام سے خارج ہے وغیرہ. لیکن آج کیسے یہ ووٹ ڈالنا حلال ہو گیا ہے؟ یہ اکثر سوال آج لوگوں کے اذہان میں ہے، بلکہ پوچھتے بھی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، اور کہیں ارکانی جماعت مل جاتے ہیں کوئی ایسا، ان سے بھی پوچھتے ہیں. پوچھنا چاہیے. جب آپ سے پوچھیں گے، ہمارے کسی صحافی سے یا کسی اور آدمی سے جو اس کے ساتھ وابستہ ہے، میڈیا کے ساتھ پوچھیں گے، آپ ان سے کہیے جماعت اسلامی نے کب کہا ہے
जमात इस्लामी ने किस सन्ने में कहा है, इसके किस आलिम ने कहा? क्या जमात इस्लामी फतवा देती है कि भाई ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज है या नाजायज? क्या ऐसा अमल हमने कभी दोहराया है? अगर उनसे ही आप पूछेंगे कि भाई हमने कब कहा ये हराम है, हमने कब कहा है ये गुनाह है, हमने कब कहा है कि भाई ये वोट डालना जुर्म है, कब कहा है? हमने एहतिजाज किया है कि भाई हम वोट अरकान की हद तक नहीं डालेंगे तब तक जब तक जमहूरी को दुरुस्त रास्ते पर चलाने की हमें यकीन दहानी कराई जाए। हमने कब कहा है कि जमहूरी हम ये जुर्म है, ये हराम है, अब हम हलाल बनाया गया? आप किसी एक अमीर जमात का हवाला दीजिए, किसी एक शूरा का ऐसा फैसला सामने लाइए जिसमें हमने ये कहा हो ये जुर्म है, या हमने बाइकाट की सारी अपील की हो। एक ही जुमला कोई बताए, उनसे पूछिए आप कहां से ये बातें लाते हैं? देखिए, इंतशार पहला ना आसान होता है, ये गुनाह भी है ना। एक ऐसे नौजवान को, जिस नौजवान ने, जो नौजवान ये बात बताता है, उसे उसके साथ कोई सबूत भी देना चाहिए था ना। ये कोई आसान बात है ये कहना? कभी हम फतवा देते ही नहीं, क्योंकि हम आलिम नहीं हैं। लिहाजा जब हम आलिम ही नहीं है, फतवा देते ही नहीं है, हम ये कह के कहा कि भाई ये गुनाह है, ये सवाब है, ये कुछ है। हमने बाइकाट किया था अरकान की हद तक, इलेक्शन में हिस्सा न लेने का। बाइकाट की अपील हुर्रियत चलाती थी, हम नहीं चलाते थे। नहीं, ये कहा था कि हम तब तक इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक में यकीन दहानी हो जाए कि जो नतीजा भी इलेक्शन का होगा वो दुरुस्त होगा। और मैं यकीन से कहता हूं कि पार्लियामेंट इंतखाबात जो हुए उनमें कोई शिकायत नहीं आई, इसलिए हम मुतमईन शायद आइंदा भी ऐसा होगा। अगर नहीं होगा फिर हम कहेंगे भाई यहाँ नतीजा एक के बजाय दूर नामजद का नाम कामयाब करार दिया जाता है। हम इस अमल के साथ नहीं है। अच्छा लोन साहब, चूंकि जमात इस्लामी कैडर बेस्ड तंजीम है और बड़ी मुनज़्ज़म, चूंकि हमने पढ़ा है देखा है, आप बता रहे हैं कि एक मुनज़्ज़म तंजीम है, तहरीक है, लेकिन जब से जमात पर पाबंदी लगी या जब से ये जो सिलसिला चला, पैनल बना और मरकज से बात हुई, जो इन्होंने ट्रिब्यूनल बनाया उसके साथ बातचीत हुई और उसके बाद मशावरत हुई, उसके बाद इलेक्शन के मामले चले, लेकिन चूंकि मीडिया के साथ आने की जरूरत थी, जब ये पैनल बना या मशावरत होती है या मरकज से बात होती है या अदालत में कोई मामला होता है, लेकिन कुछ गैर मुनज़्ज़म सा लग रहा है। कोई तर्जमान आगे बात नहीं कर रहा, किसी मुनज़्ज़म तरीके से बात नहीं हो रही है। 3-4 लोग जमात के अलग अलग बातें बता रहे हैं, मीडिया में तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, अवाम में भी। ऐसा क्यों है? ये गैर मुनज़्ज़म जैसा लग रहा है। क्या कुछ मामला, इसको मुनज़्ज़म क्यों नहीं किया जा रहा है? हर एक अपनी अपनी बात बोल देता है। पाबंदी लगी ही नहीं है, पाबंदी लगी ही नहीं, लगने के बाद हमने कबूल भी की है, इसलिए हमारा काम मुनज़्ज़म नहीं हो सकता। यानी हम ये नहीं है कि पाबंदी लगी हम नहीं मानेंगे, पाबंदी लगाई गई हमने मान ली है, तस्लीम किया है, तब से घर बैठे हैं, कोई काम नहीं करते हैं, जमात का कोई प्रोग्राम नहीं चलाते हैं, कोई इज्तिमाई फैसला नहीं कहा। ट्रिब्यूनल के हवाले से ये एक जरूरत थी जिसको हमने हुकाम तक पहुंचाया, इस हवाले से कुछ छोटी बड़ी मीटिंग हमने की होगी, बाकी हो सकता है इसलिए हो जाए क्योंकि हम कानूनन लगी हुई बैन को तोड़ नहीं सकते। अच्छा लोन साहब, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर जमात, चूंकि जमात अगर इनके साथ कुछ बातों पे बात करती मरकज के साथ या बाकी मामला जो है, जो बार्गेनिंग पावर है, जो इनके साथ डील करने का मामला है, अब वो कमजोर पड़ गया है। अब जमात उस तरीके से मरकज से डील नहीं कर पाएगी या बार्गेनिंग पावर इनका बहुत वीक हो गया है कि अगर ये इलेक्शन में आएंगी आजाद उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी, अगर मरकज पाबंदी नहीं उठाती है। इनको चाहिए था कि मरकज से कहीं अगर आप पाबंदी नहीं उठाएंगे तो हम जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, और इससे वो डील करने में बहुत कमजोर हो जाएंगे और उनको बहुत झुकना पड़ेगा। असल बात यह है कि ये हमारा फैसला है, हम जमहूरी अमल में हिस्सा लेंगे। तो अगर मरके हमारी बात नहीं मानी, बैन नहीं उठाई और लगाई हुई बैन को ट्रिब्यूनल भी उसने भी उसको तस्लीम कर लिया कि भाई बैन ही रहेगी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक जमहूरी अमल से हम किनारा कश हो जाए। हम इसमें अपनी बेहतरी, तंजीम की बेहतरी और लोगों की बेहतरी नहीं समझते हैं। शायद हमारी सोच चाहे अच्छी हो या ना हो, लेकिन हम यही समझते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।
जिस हद तक जमहूरियत यहाँ चल रही है उसमें हिस्सा लेंगे। फिर वो दूसरा मौजू है, हमारे साथ क्या होगा वो अलग बात है, हमारी बात मानेंगे ना मानेंगे। अच्छा लोन साहब चूंकि जमात इस्लामी कलंदम तंजीम है, बैनड है, और आप बता रहे हैं हम जमहूरी अमल में हिस्सा लेंगे और आप उम्मीदवार उठाएंगे, आजाद उनको सपोर्ट करेंगे, क्या बैनड ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कर सकती है? चूंकि आप पैनल के साथ रहे हैं, आप इस कानूनी सिलसिले के साथ इनसे बातचीत हुई है, क्या ऐसा हो सकता है कि बैनड ऑर्गेनाइजेशन किसी आजाद उम्मीदवार उठाकर सपोर्ट दे सकती है, वोट डाल सकती है? अगर हमें हुकूमत ये कह सकती है या कहेगी कि भाई तुम वोट भी नहीं डाल सकते आइन के रू से, तो इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं ले सकते, तो नहीं लेंगे, वोट नहीं डालेंगे। जब वोट डालने की भी इजाजत है तो कैंडिडेट उठाने में क्या हर्ज है? किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करने में क्या कबाहत है? या तो वो कहें भाई जब तुम ममनू हो वोट भी मत डालो, जब तुम ममनू हो वोट भी मत डालो, किसी आजाद उम्मीदवार को सपोर्ट भी मत करो। अगर वो ये कहेंगे तो हम वो भी मानेंगे, उनको कहना पड़ेगा। उनको रेडियो के जरिए, टेलीविजन के जरिए, अखबारात के जरिए, कानून के जरिए हम पर वाज़ेह करना चाहिए कि भाई तुम्हारे जितने भी वोटर हैं वो पोलिंग स्टेशन पर ना आए। अगर वो कहते हैं कि तुम जमहूरी अमल में हिस्सा लो, और ये भी कहेंगे कि भाई जमात के हिस्सा लेने टर्न आउट ज्यादा बढ़ गया, तो उस वक्त हम ममनू नहीं थे, उस वक्त कबाहत नहीं थी, तो फिर कैंडिडेट सपोर्ट करना है ना किसी को, या तो एनसी को करना है सपोर्ट, पीडीपी को करना है सपोर्ट। देखिए कहीं न कहीं इन जितने सीटें हम बराह रास्त जिनकी हम हिमायत करेंगे, उसके बगैर भी यहाँ सीटों पर इलेक्शन हो रहा है, तो वहां जो हमारे वोटर है किसी न किसी को वोट डालना है, या जिसको डालेंगे या हम उनको उनकी मर्जी पर छोड़ेंगे। लेकिन कहेंगे यहाँ मत लड़ो, तो उनको भी कहीं वोट मत डालो। अगर ऐसा करेंगे हम मानेंगे। यानी आपके कहने का मतलब है कि जमात पर पाबंदी होने के बावजूद जमात के अरकान, हमदर्दान या उम्मीदवार रुकन जो इससे इत्तेफाक रखते हैं आपके नजरिया से, उनको वोट डालने का हक है आइन में, ऐसा है, ऐसा वो कर सकते हैं? डालना चाहिए, उनको डालना चाहिए। हाँ, अगर हुकूमत उनको रोक लेती है भाई तुम पोलिंग स्टेशन मत आओ, तुम जमात के साथ ताल्लुक रखते हो, तो मामून बेचारे नहीं जाएंगे, ऐसा हो सकता है। अच्छा लोन साहब मुझे बताएं, क्योंकि चलने फिरने में तो कोई मसला नहीं है, पाबंदी नहीं है, आपको जमात के बैनर के नीचे आप कोई इज्तिमा नहीं कर सकते, कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते, कोई मीटिंग नहीं कर सकते जिसपे जमात का बैनर हो, जमात इस्लामी के बैनर है। लेकिन अगर आप ये बता रहे हैं कि कुछ आजाद उम्मीदवार जो कुछ इलेक्शन में आना चाहते हैं हम उनको सपोर्ट करेंगे, क्या ऐसा नहीं है आप यहाँ की मजहबी दीनी तंजीमों के साथ राब्ता करें और उनसे मदद लेके कुछ ऐसा तरीक़ेकार अपनाएं जिससे कोई अच्छा सा उम्मीदवार खड़ा हो जाए जिसको सारी मजहबी दीनी तंजीमें बल्कि यहाँ के आम लोग भी सपोर्ट करके एक अच्छा सा नुमाइंदा असेंबली में आ जाए? एक ममनू तंजीम जो है वो इस तरह के फोरम तैयार नहीं कर सकती। हाँ, हम किसी आजाद उम्मीदवार को ये कहेंगे भाई तुम्हारे क्या ख्यालात हैं, तुम क्या करने वाले हो, अगर वो हमारे मेयार पर उतरती है हम खुद बरास्त अपने वोटरों से कहेंगे इनकी मदद करो। तो हम कहाँ जाएंगे, फिर पार्टियों को जमा करेंगे, हमारे पास कैडर भी नहीं है, हम खुले फिर नहीं सकते हैं, कोई इसको भी सीआईडी वाले लिखेंगे भाई पता नहीं जो कुछ वो हमारे ही सर डालते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, वरना बात अच्छी थी। हाँ, उनको आना चाहिए था, उनको सोचना चाहिए था, अगर वो ऐसा करते हम वो हमारे पास आते उसमें कोई कबाहत नहीं थी। लेकिन हमारा उनके पास जाना जो है वो कोई ठीक बात नहीं है। हम पर इल्जाम लगेगा, सीआईडी वालों ने लिखा होगा डायरियों में, चले गए फलानी जगह तकरीबी कार्य करते हैं, हमारे मुतालिक क्या क्या नहीं लिखते हैं ये हम सुनते हैं। मैं एक 77 साल एज का आदमी हूं, मेरे खिलाफ केस में लिखा गया है कि सुपरनागामा में इसने पत्थर फेंके, इसने खतरनाक तकरीर की, और इसका हल्फी बयान भी दिलाया गया है लोगों के जरिए से, हमने अपनी आंखों से देखा। जब इस पूरी मुद्दत में मैं इस इलाके में था ही नहीं, मैं श्रीनगर में था। ऐसे जहां ऐसे लोग भी हों वहां आप जो तजवीज करते हैं, तजवीज तो बड़ी अच्छी है और हम बहुत खुशी महसूस करते हैं अगर मेरा उलमा के साथ इस तरह का रायता होता, लेकिन सर मंडाए ही ओले पड़ेंगे तो ऐसा हम रिस्क नहीं लेंगे। अच्छा लोन साहब मुझे पता है वक्त भी, आप भी थक गए होंगे, मुझे एहसास है इसका, बिल्कुल एहसास है।
जब तो आप मैं हटाएंगे चूंकि तो आप थक जाएंगे, फिर भी नहीं, चूंकि करेंगे। ये कुछ बड़ी अहम अहम कुछ कंफ्यूजन था अवाम में, और मैं चाहता हूं कि किसी तरीके से एक वाजे आप जमात की पॉलिसी वाजे आ जाए। मुझे बताएं, अगर आप जमात में कुछ लाइक माइंडेड जो आपके नजरिया से इत्तेफाक करते हैं, वो इलेक्शन में आते हैं, जमात इस्लामी उनको सपोर्ट करती है, और अगर उनकी जमानतें जब्त होती है, वो हार जाते हैं, उनको बहुत वो कम वोट पड़ते हैं, कहीं जमात की रेपुटेशन मजीद खराब तो नहीं, नहीं हो सकती? और कुछ नहीं हो मरकज जाएगा। और मरकज चूंकि चूंकि क्योंकि मरकज को अभी ये भी मालूम है कि जमात के पास एक पावर है, वोट बैंक है, जिसकी वजह से वो इंतखाबात में अपना असर और बल्कि मुअस्सर भी रहेगा। अब अगर ऐसा होता है, कहीं रिपुटेशन खराब हो के मरकज मजीद आप पे दबाव तो नहीं कुछ ऐसा कर सकती है? नहीं, ऐसा कोई दबाव दबाव वो डालेंगे या ना डालेंगे वो वाली बात है, हम क्या कहेंगे अगर डालेंगे, लेकिन हमें कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम्म, हम बराह रास्त कंपेन नहीं चलाते हैं। कंपेन एक हम्म। आजाद उम्मीदवार खुद ही चलाता है। लिहाजा अगर वो हारता है, अगर उसके वोट कम आते हैं, तो इस पर हम पर क्या ब्लेम लगेगी? इसमें कोई नहीं, इससे कोई कबाहत नहीं है। ये इसके साथ इत्तेफाक नहीं है। नहीं, एक तरफ से जमात कह रही है, क्योंकि जमात अगर कौल से नहीं लेकिन फेल से ये कह रही है, बल्कि अवाम को, मरकज को ये कह रही है कि जमात के पास ला तादाद लोगों की, बल्कि लाखों में नजरिया से इत्तेफाक करने वाले लोग हैं, हमदर्दान हैं। इट मीन्स कि अगर ऐसा जी, मामला आता है, जमात कुछ करती है, तो ये हमदर्दान भी इसमें इन्वॉल्व होंगे वोट वोट मामले में। तो देखिए अगर हम जो आप अगर उनकी जो जमानतें जब्त होती हैं, आपसे मैं आपसे कंप्लीट करूं लोन साहब, नहीं, मैं मैं बात समझा। कंप्लीट करूं। अब मैं एक बार हाँ, में हाँ, फिर से कंप्लीट करूं। मेरा कहने का ये मतलब है, जमात इस्लामी अगर कौलन ये नहीं कहती है, लेकिन फैलन या जमात का देखते हैं, जहां तक हम ये देखते हैं, ये सिलसिला बहुत सालों से जमात के साथ हमदर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद है। जमात अगर कहीं इज्तिमा करती है तो हजारों में लोग आते हैं, बगैर किसी पोस्टर के। या हमने देखे गुज़श्ता बैन से पहले आप जिला लेवल पे बड़े बड़े इज्तिमा करते थे, हजारों लाखों की तादाद में लोग होते थे। यानी वो आपके नजरिए से इत्तेफाक करते हैं। इट मीन्स अगर आप जमात को इट में आप ये मरकज को भी कहना चाहते हैं अपने फेल से कि हमारे साथ लोगों की अच्छी खासी तादाद है। अब अगर आपके उम्मीदवारों की जमानतें जब्त होती हैं, वो हार जाते हैं, तो कहीं वो जमात की इमेज पे कोई असर तो नहीं डालेगी? इसके बाद आपने क्या हम सोचा मरकज है? से हम मरकज से ये कह चुके हैं, न कहेंगे। हमारे साथ बहुत से लोग हैं, हम उन्हें सिर्फ इतना कहते हैं कि हम कोई इलीगल काम नहीं करते। हमने कभी नहीं कहा है कि हमारे साथ लोगों की बड़ी तादाद है, ना हमें ये जोम है, ना हमारा ये ख्याल है। जहां तक हम वोटरों से अपील करेंगे, जहां जहां हम की हिमायत करेंगे, वहां जो लोग हैं, हम सबों को कहेंगे कि भाई इनको कामयाब किया जाए, और उनसे हम उम्मीद रखेंगे अगर वो कामयाब होते हैं तो वो हमारे केस में हमारी मदद करें। हम मुश्किलात में हैं, हमारे पर एक किस्म का अताब आया है, इसमें अगर वो हमदर्द बनते हैं हमारी, कोई हर्ज नहीं। वो ओके। हम वो अच्छा, परवाह नहीं है। लोन साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा बड़ी ईमानदारी से। अभी महबूबा मुफ्ती का कुछ दिन पहले, आजकल भी उनका एक बयान आया कि नेशनल और कांग्रेस के इत्तेहाद करने से या मरकज का ये वो करने से, आर्टिकल तोड़ने से, जो कश्मीर मसला है, कश्मीर डिस्प्यूट है, इस पे कोई असर नहीं पड़ा है, बल्कि जब से इनने 370 का खात्मा किया, उसकी वजह से ये और उलझ गया है मसला। अभी मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ कि लोग बता रहे थे, इन्हें बताएं कि जमात का स्टैंड क्या है कश्मीर इशू के मुतालिक, और कुछ जवाब देखिए, दे रहे थे लोग के, और कुछ लोग कमेंट्स में जवाब दे रहे थे कि मसला कश्मीर सिर्फ जमात का मसला नहीं है, ये सब का मसला है, जब सब बात करेंगे। तो आज जमात क्या देखिए, कहेगी इस पे? इससे पहले भी मुझे पता याद नहीं किसने मुझे इंटरव्यू लिया था, पार्लियामानी इंतखाबात जब हो रहे थे, मैं वोट डाल के आया था, शायद CNN थे। मैंने उनको भी कहा मसला कश्मीर जो है, इसमें हम हिंदुस्तान स्टैंड को लेंगे। हिंदुस्तान का आज का स्टैंड क्या है? आजाद कश्मीर हमारा है, ये आज वो कहते हैं। तो पाकिस्तान का स्टैंड क्या है? पूरे कश्मीर का इलाहाक पाकिस्तान के होना चाहिए। इन दो मुल्कों के दरमियान डिस्प्यूट है ये कोई ऐसी बात है जब जो हमने नहीं कही है, ये पार्लियामेंट मौके पर भी मैंने कही है जमात की तरफ से। भाई ये तो एक हकीकत है, और इस हकीकत को हम जुटलाएंगे कैसे? हिंदुस्तान कहता है कि आजाद कश्मीर हमारा है, हम उसको लाएंगे। हम इतना ही कहे, सिर्फ इतना, और कहेंगे भी कि भाई ये जंग जो होगी ये हमारी सरहदों पर होगी, अखनूर में होगी, इधर उड़ी में होगी, इधर करना में होगी।
हमारे लोग बॉर्डर पर मुतासिर होंगे, हम उनसे मशवरा देंगे जंग मत करो। ये मसला जो है आपका, ये आप दो ममालिक अगर पुरअमन तरीके से हल करेंगे रहेगा आप दोनों मुल्कों के लिए, हम इसमें क्या रोल अदा कर सकते हैं? हमारा कोई रोल ही नहीं बनता है, क्योंकि दोनों मुल्कों का स्टैंड जो है वो ये है कि एक कहता है कि वो सारा हमारा है, दूसरा भी कहता है कि सारा हमारा है। अब आप ये बताइए, हम इसको कैसे कहेंगे कि ये हक नहीं है, ये ठीक है? हाँ जी 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 ठीक है। हाँ, अच्छा लोन साहब बहुत हो गया। मैं अर्ज करूंगा कि हमने पहले भी कहा है, अब भी कहते हैं कि ये दो मुल्कों को आपस में हल करना चाहिए। हम इतना अपील, सिर्फ इतनी ही अपील करके पुरअमन तरीके से करें, एटमी जंग ना करें, तबाही न मचाए। मैंने उस दिन भी कहा गया, किसी ने कहा, मैंने कहा कि जाहिर है एटमी जंग करेंगे, क्यों करेंगे? बैठकर हल भी कर सकते हैं, अलबत्ता हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हम नहीं कुछ कहेंगे। जमात में कहता हूँ दो सवाल मैं पूछूंगा मुख्तसर से। मुझे बताएं, चूंकि अभी हुकूमत की तरफ से कोई ऑर्डर रिटर्न नहीं आया कि इन्होंने पाबंदी को ये बरकरार रखा या नहीं। अब अगर कल या परसों तक ऑर्डर आ जाता है कि पाबंदी बरकरार है, तो क्या ऐसे में जमात जो आजाद उम्मीदवारों के मुतालिक कोई नई पॉलिसी या कुछ ऐसा मीडिया के सामने, आवाम के सामने लाने जा रहे हैं? अगर पाबंदी आती है तो हम किसी कानूनदान से पूछेंगे कि अगर ये गुनाह बनता है, कानूनी तौर जुर्म है, तो नहीं करेंगे। अगर कानून इजाजत देता है हम फिर इसको प्रोसेस को जारी रखेंगे। अगर बैन नहीं हटती, अब अगर कल या परसों तक ये ऑर्डर आता है कि जमात से पाबंदी हटा दी गई, क्योंकि जब तक ना ऑर्डर आए तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, अभी ये खबरें हैं, तो फिर आप क्या जमात के नाम पे इलेक्शन उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे? यकीनन, हाँ, डेफिनेट। ओके, ठीक है। अमल से अलग नहीं होना चाहते। बताइए। और वाज़ेह हो गया। लोन साहब, अब आखिर पे आप बस आप समेटें इस प्रोग्राम को, आपकी क्या मैसेज रहेगी मजमूई तौर कश्मीरी अवाम के लिए, नौजवानों के लिए, क्योंकि इस तरारी कैफियत जो पैदा हो गई है, इसको आप आखिर पे आप बस ये समेटें। मैं अपने रियासत के सभी भाइयों, बुजुर्गों, बेटियों, बेटों से गुजारिश करूंगा कि बर्रे सगीर के हालात को मद्देनजर रखते हुए हमें चाहिए कि हम इस रियासत को, इसके अंदर अपना वो रोल अदा करें कि ये रियासत जो है ये अपना तशख्खुस बरकरार रखे। इस रियासत के लोग जो हम हैं, हम अपने मसाइल खुद हल करें, अपने अंदर काबिलियत पैदा करें, हमारे नौजवान आने वाले काल को संभालने के लिए अपने अंदर सलाहियत पैदा करें। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, दफा 370 हटने के बाद हम पर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। मुझे इसके साथ इत्तेफाक नहीं है, कोई कहेगा इस दफा को फिर बहाल करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये एक पार्लियामेंट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का इस पे मुहर सबत हो चुकी है। इस रास्ते से हम अपने नौजवानों को वक्त जाया का मशवरा नहीं देंगे। और हमें ये भी यकीन है कि इसको एक अलायंस जो बना है इंडिया की सतह पे, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उसमें और पीडीपी भी उसमें शामिल है। तो राहुल गांधी जी ने जम्मू में ये नहीं कहा कि 370 हम देंगे, उसने कहा हम स्टेट हुड देंगे। ये वादा मोदी साहब ने किया था और अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में किया है ये वादा कि हम स्टेट हुड, कोई ये दोनों कहते हैं, लेकिन वो ये भी नहीं कह सके कि हम अगर कांग्रेस बरसत इकदार आती है, आज नहीं काल नहीं परसों, तो फिर वो 370 को बहाल करेगी। लिहाजा इस तनाजुर में हमें अपने अंदर एक ही चीज हमें हमारे लिए बचाव है, वो हम अपने अंदर काबिलियत पैदा करें। जिस शोबे में जाए महारत पैदा करें, जिस शोबे में जाए हमने अपना काम करना छोड़ दिया है। हमारे काम जो हम खुद कर सकते हैं वो बाहर वाले करते हैं। हमारे अंदर ड्रग्स की बुरी आदत पैदा होने लगी है, हमारे नौजवान बर्बाद है। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, उनकी अपनी मर्जी है वो किसको वोट डालेंगे। हमारे इस अमल को वो पसंद करते हैं नापसंद, वो उनकी मर्जी है। मेरे ख्याल में उनको पसंद करना चाहिए था जो हम कहते हैं, अगर ना भी करें कोई बात नहीं, लेकिन इस स्टेट को संभालना, इसके मसाइल को अपने हाथों से खुद हल करना, अगर वो अपने काबिलियत पैदा नहीं करेंगे, किसी और को मौका फराहम करते हैं कि वो ये काबिलियत यहाँ आके दिखवाए। एक आदमी है
रिश्वत लेता है, ऑफिसर है, वो रिश्वत हमसे लेता है, हम पर जुल्म करता है, कल उसको एक कुर्सी छोड़नी है, कोई बिहार से आएगा, बंगाल से आएगा, अपनी काबिलियत दिखाकर उसकी जगह ले और वो दर बदर फिरेगा। ऐसा जमाना साथ नहीं देता है। धोखाबाजों को, फिरेबियों को, चोरों को, लुटेरों को, उनको वक्त साथ नहीं देता है। वक्त अगर दे भी थोड़ा साथ, खुदा साथ नहीं देता है। मैं तमाम नौजवानों को, लड़कियों को, लड़कों को सिर्फ अपने अंदर ये काबिलियत पैदा करने की गुजारिश करूंगा, आने वाले काल में जो घर को भी संभालें, बाजार को भी संभालें, सियासत को भी संभालें, जो हमारे शोबजात हैं उनमें जहां जाएंगे जानदारी से काम करें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।